OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. We have started in the last class some special series and sequences. इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था? How to find nth term of the sequence. After getting nth term, हम लोगों ने sum पढ़ा था. Sum अगर हमें find करना है after getting nth term. What is the sum? Sum is sigma of Tn. Tn is a general term. तो जनरल टर्म निकाल लिया आपने, उसके साथ सिग्मा अप्लाई कीजिए, जनरल टर्म कैलकुलेट कर लिया आपने, उसके साथ सिग्मा अप्लाई कीजिए. दिस गिव्स द सम ऑफ n टर्म्स. इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे. चलिए लेते हैं और क्वेश्चंस. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस m term of the series. What is the series? 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon 4 into 5. This is the sequence. We have to find the sum of n terms. How many terms? N terms. Okay. So, see the concept of this type of sequences. क्या concept लगेगा? First, identify general term. Can you identify general term? Numerator is always 1. See, in all terms, numerator is 1. Now, see the denominator. Denominator consists of two terms which are in product form. 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4. Carefully watch the first term of each denominator. 1, it's a 2, 3, 4, 5. What will be the nth term? It will be n. And the next one is 1 more than it. This is the nth term. Now, if this nth term, अगर ये nth term है, Tn is nth term is the function of n, but the function of n appears in numerator. Whatever the function is, you can apply sigma to find the sum. Sigma Tn is the sum of n terms. Okay, so you can write sigma n square plus n. But if the term function of n appears in denominator, if you will apply the same concept, then it is wrong. समझिए कैसे क्यों? If nth term is 1 upon n into n plus 1, अगर आप कहें sum is, you can write, आप ऐसे तो लिख सकते हैं n upon n plus 1, but you can't apply the sigma in denominator. अगर आप ऐसे लिखते हैं 1 upon sigma n plus 1, then it's wrong. Till here it is correct. तो आप क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट फिर आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे. डिनोमिनेटर में आप सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट समझिए. तो हम इसे लिख पाएंगे 1, कैन बी राइट दिस एज 1 by n plus 1. नाउ चेक कीजिए इनका सम या डिफरेंस इसके इक्विवेलेंट होगा. पहले रफ में चेक कीजिए. वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ 1 upon n plus 1 upon n plus 1. व्हाट इज एलसीएम? n into n plus 1. तो n plus 1 plus n. तो it's a 2n plus 1 upon n into n plus 1. क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? नो. नाउ चेक द डिफरेंस. Check the difference. 1 upon n minus 1 upon n plus 1. What is the LCM? n into n plus 1. Clear? You will write here n plus 1 minus n. n से n cancel होगा. 1 upon n into n plus 1. Now, the difference जो है वो इसके इक्विवेलेंट है. Then we will put here negative sign. तो Tn को हमने कैसे एक्सप्रेस किया? 1 upon n minus 1 upon n plus 1. Now, put n is equal to, आप यहां पे जब डिनोमिनेटर में n कंसिस्ट होगा तो आप इस तरह से नहीं करेंगे कि सिग्मा अप्लाई कर दें, क्योंकि आई टोल्ड यू कि 1 अपॉन सिग्मा n, यहां तक तो करेक्ट है सम, बट यू कांट राइट दिस लाइक 1 अपॉन सिग्मा n. ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. दिस इज रॉन्ग. तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है? पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अप टू n. n की वैल्यू 1 2 3 4 n तक पुट कीजिए. उसके बाद यहां लिख रहे हैं आपके लिए what is Tn? Tn is 1 upon n minus 1 upon n plus 1. Now put n is equal to 1 2 3 up to n. तो
अगर n आप 1 पुट करेंगे तो दिस गिव्स द फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1 upon 1 minus 1 upon 2. 1 plus 1 2. Put n2 1 by 2 minus 1 by 3. Put n3, you will get t3 means third term, which is 1 by 3 minus 1 by 4. n की वैल्यू 4 तो 1 by 4 minus 1 by 5. Similarly आप रखिए n की वैल्यू n, you will get 1 upon n minus 1 upon n plus 1. Now first term, second term, third term, fourth term up to n term, जब इनको ऐड करेंगे this is the sum of n terms. तो सम क्या आ गया? वी आर टेकिंग द सम, दिस गिव्स द सम ऑफ n टर्म्स. तो सम कीजिए, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल होगा, 1/3 माइनस 1/3 4 1 माइनस 1/4. सिमिलरली माइनस 1/5 एंड 1/5 कैंसिल होगा, एंड 1/n इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 1 अपॉन n आया होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे. ओनली 2 टर्म्स आर लेफ्ट, एक ये बच रहा है एंड एक 1 बच रहा है. तो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, 1 minus 1 upon n plus 1. इधर यू कैन राइट, बस यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं. व्हाट इज एलसीएम? n plus 1. n plus 1 minus 1, 1 से 1 कैंसिल. दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, n upon n plus 1. फिर से आपको क्लियर करते हैं. फर्स्ट राइट द जनरल टर्म. जनरल टर्म इज 1 upon n into n plus 1. नाउ हमने जनरल टर्म को 1 अपॉन n और 1 अपॉन n प्लस 1 के डिफरेंस में ब्रेक किया, तो ये जो है पूरी कैलकुलेशन इसी के इक्विवेलेंट आ रही है. देन वी पुट, उसके बाद हमने जनरल टर्म में n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n पुट की. तो 1 पुट करेंगे दिस गिव्स फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे दिस गिव्स सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे दिस गिव्स थर्ड टर्म. सिमिलरली n तक पुट किया तो ये हमें मिल गए सारे 1 2 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू n टर्म्स. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट n टर्म्स, तो इनको ऐड कर दिया. तो जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल किया, जो बच गए वही खाली लिखे और इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया. चलिए और क्लियरिटी के लिए और क्वेश्चंस लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज. व्हाट इज सीरीज गिवन? 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5. How many terms are there? 2 n terms. We have to find the sum of n terms of the sequence. Yes, you can easily identify the general term. Nth term. What is nth term? See the first term of the each denominator. 1 2 3. In general term, first term will be n, then next two are n plus 1 and n plus 2. लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था? हमारे पास जनरल टर्म आया था tn 1 upon n plus 1. क्या किया था हम लोग ने इसको? वी हैव, इसको हम लोग ने कैसे ब्रेक किया था? 1 upon n minus 1 upon n plus 1. अब यहां पे कैसे ब्रेक करेंगे इसे? सी सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पे 2 टर्म्स थे तो हमने डिफरेंस में ब्रेक कर दिया. हियर आर 3 टर्म्स. तो फर्स्ट आप हाइड कीजिए ग्रेटेस्ट टर्म इन द डिनोमिनेटर. n plus 1 n plus 2 में ग्रेटेस्ट टर्म क्या है? n plus 2. हाइड द ग्रेटेस्ट टर्म, जो बचता है फर्स्ट 1 upon n plus 1. नाउ हाइड द लीस्ट टर्म इन द डिनोमिनेटर. व्हाट इज द लीस्ट टर्म? n. लीस्ट टर्म को हाइड करेंगे, दिस विल गिव n plus 1 into n plus 2. नाउ राइट द डिफरेंस ऑफ दीज 2 टर्म. चेक कीजिए रफ में, क्या ये डिफरेंस एग्जैक्टली इसी के इक्विवेलेंट है? इफ इट इज एग्जैक्टली इसके इक्वल है तब तो इसको ठीक है आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हमें इसके इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा. तो चेक कीजिए इन रफ में क्या इनका डिफरेंस इसके इक्विवेलेंट है. तो एलसीएम आ जाएगा n n plus 1 n plus 2. एलसीएम तो n plus 1 डिवाइड होगा, हियर यू विल राइट n plus 2. n plus 1 n plus 2 डिवाइड होगा, हियर यू विल राइट n से n कैंसिल होगा. तो न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम आ गया बट न्यूमरेटर 2 आ रहा है, वी नीड द न्यूमरेटर 1. तो हमें न्यूमरेटर 1 बनाना है, दिस गिव्स न्यूमरेटर 2. तो डिवाइडेड बाय 2, न्यूमरेटर में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ ये दिस एंड दीज 2 टर्म्स आर इक्विवेलेंट. नाउ पुट, बाकी आगे का कॉन्सेप्ट सेम है. नाउ पुट n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, 4 up to n, and then add the terms. You will get the result. What is t1? t1 means we are putting n is equal to 1. 1 by 2, 1 upon 1 into 2 minus 1 upon 2 into 3. t2, we are putting n2,
1/2, 1/2 into 3 minus 1/3 into 4. T3, 1/2, 1/3 into 4 minus 1/4 into 5. T4, 1/2, 1/4 into 5 minus 1/5 into 6. Similarly, आप Tn तक पुट कीजिए. What is Tn? Tn is 1/2 into 1 by n into n plus 1 minus 1 upon n plus 1 n plus 2. ये हमने लिख दिए सारे n टर्म्स. अब हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स. तो एड दीज सीरीज, यू विल गेट द सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स. एड द सीरीज. यू विल टेक 1/2 कॉमन, क्योंकि हर एक ब्रैकेट के बाहर 1/2 है. 1/2 इज कॉमन. आफ्टर टेकिंग कॉमन क्या कैंसिल हो रहा है? 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 अपोजिट साइन के साथ है. सिमिलरली ये कैंसिल हुआ, तो ये कैंसिल होगा जस्ट इसके ऊपर वाले से. कौन से दो टर्म बच रहे हैं? 1/1, 1 into 2 and the last term 1/n plus 1 n plus 2. So you will write 1/1 into 2 minus 1/n plus 1 into n plus 2. इधर आप यहीं छोड़ दीजिए या फिर और क्या करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए. दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स. होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. What is arithmetico-geometric progression? चलिए अभी डिस्कस होगी. The next is arithmetico-geometric progression. What is arithmetico-geometric progression? चलिए समझते हैं. Let two sequences. What are the two sequences? First one is 1r, r square, r cube up to r to power n minus 1. This is the nth term of the sequence. ये sequence कौन सी है? This is the GP. How many terms are there? There are n terms. And consider another sequence which is AP. AP क्या है? देखिए A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on up to nth term A plus n minus 1D. This is the nth term. We have taken a GP, n terms are there, and second sequence is AP. Again we have taken n terms. Multiply the corresponding term. Corresponding term means फर्स्ट एंड फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड सेकंड को, थर्ड थर्ड को. इस तरह से जो सीक्वेंस मिलेगी दैट इज सेड टू बी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक जो टर्म होगा, जनरल टर्म, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ corresponding terms of a GP and AP. Therefore, arithmetico geometric progression AGP is कैसे मिलेगी? corresponding term को multiply करने से. तो 1 into A, R into A plus D, R square into A plus 2D, R cube into A plus 3D and so on. What is the nth term? R to power n minus 1 into A plus n minus 1 into D. तो जनरल टर्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें जनरल टर्म कैसे मिलेगा? फाइंड द जनरल टर्म ऑफ जीपी एंड फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एपी एंड मल्टीप्लाई द जनरल टर्म. यू विल गेट द जनरल टर्म ऑफ एजीपी मींस अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आप इनका सम कैसे करोगे? सम टाइम स्टूडेंट से कि जीपी का सम एंड एपी का सम करके मल्टीप्लाई कीजिए. दिस इज द सम. इज दिस कॉन्सेप्चुअली करेक्ट? आप सोच के देखो. वी आर नॉट टेकिंग द एजीपी, वी आर टेकिंग टू टर्म्स. सपोज कीजिए हमारे पास है एन एपी एंड एन जीपी. 1 + 2 + 3. दिस इज द एपी. 1 + 2 × 4. दिस इज जीपी. एजीपी क्या बनेगी? 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 4. करेस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगी? एजीपी. तो एजीपी का सम करना है और एपी और जीपी के सम का प्रोडक्ट करें. इज दिस इक्विवेलेंट? चलिए चेक करते हैं. 1 + 2, 3 + 3 6. दिस इज 7. तो अब इनका प्रोडक्ट किया जाए. दिस इज 42. और जबकि हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है? एजीपी का सम विच इज 1 × 1 + 2 × 2 3 × 4. तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 4 12. दिस इज 17. तो दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग कि हम एपी का सम कर लें, जीपी का सम कर लें और प्रोडक्ट कर लें. दिस इज द सम ऑफ एजीपी. क्लियर हुआ? तो वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द सम ऑफ एजीपी.
एजीपी कैसे मिलेगी? करस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट से, देन वी हैव टू फाइंड द सम। चेक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड द सम ऑफ एजीपी। एजीपी मीन्स अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेट सम इज एस, हमने सम को क्या कह दिया? एस, एस बी द सम। तो राइट एस इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस आर इंटू ए प्लस डी प्लस आर स्क्वायर इंटू ए प्लस 2d प्लस आर क्यूब इंटू ए प्लस 3d एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट से पहले आप सेकेंड लास्ट लिखिए, कंसिडर, आप इमेजिन कीजिए व्हाट विल बी द सेकेंड लास्ट टर्म। आर टू पावर एन माइनस 2 रहा होगा, ए प्लस एन माइनस 2d and the last term is r to power n minus 1 a plus n minus 1d. Now multiply r. What is r? जो AGP में GP एसोसिएटेड है उसका कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, we are multiplying by r and r is the common ratio of the GP. This becomes rs. जब फर्स्ट टर्म में r मल्टीप्लाई करेंगे तो ar हो जाएगा। You will write to the term containing r in the above series, तो r वाले टर्म के नीचे ही लिखेंगे r इंटू ए, 1 इंटू ए इज ए। नाउ जब इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स r स्क्वायर इंटू ए प्लस डी, तो आप r स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे a प्लस डी। सिमिलरली जहां मल्टीप्लाई करेंगे यू विल राइट बिलो टू द नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d। सिमिलरली जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसके नीचे लिखेंगे r टू पावर n माइनस 1 a प्लस n माइनस 2d। तो वी हैव टू राइट, जब आप इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप आगे निकल जाएगा, बट वी आर राइटिंग जस्ट बिलो इट बिकॉज देयर इज अ lack of space, that's why we are writing here a plus n minus 1d. Now take the difference of the two series, take the difference s minus rs, s common होगा, you will write here 1 minus r, here is no term, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 into a means a। अब देखिए, अब जब आप यहां इसको सबट्रैक्ट करेंगे r कॉमन आएगा, a प्लस डी माइनस ए, डी विल गेट कैंसिल, यू विल गेट ए आर। नाउ यहां क्या कॉमन है? r स्क्वायर कॉमन है, व्हेन सबट्रैक्ट करोगे a से a कैंसिल होगा, 2d माइनस डी, इट्स अ d। सिमिलरली यहां पे देखिए r क्यूब कॉमन है, a से a कैंसिल, 3d माइनस 2d, इट्स अगेन d। एंड दस इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, ये लास्ट में आप लिखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? r टू पावर n माइनस 1 आप कॉमन ले लेंगे, a से a कैंसिल, n माइनस 1d माइनस n माइनस 2d, तो इट्स अगेन d। एंड ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम सेकेंड सीरीज को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस r टू पावर n a प्लस n माइनस 1d। और हमें फाइंड क्या करनी है? वैल्यू ऑफ s। चेक, यहां से जो सीक्वेंस बन रही है, जहां से डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं और डिफरेंस यहां तक बन रहे हैं, आर दीज टर्म इन जीपी? Yes, they are in GP. This is actually dr. A से A कैंसिल हो रहा है, this is dr. What is the first term of the GP? dr. Second term r square d. Third term r cube d. Means r multiply हो रहा है, d नहीं, d is everywhere. So this is GP and common ratio is r. How many terms are there? n minus 1. Find the sum of these n minus 1 term of the GP. A plus, what is the sum of GP? GP का सम क्या होता है? a into 1 minus r to power n upon 1 minus r if there are n terms. अगर n की जगह n minus 1 terms है, you will write r to power n minus 1. और फर्स्ट टर्म a है तो a लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म? dr, तो you will write फर्स्ट टर्म की जगह क्या रखेंगे? dr, 1 minus r to power n minus 1 because common ratio तो r है but number of terms n minus 1 है, upon 1 minus r and you will write the last term. यहां तक का सम आ गया ये। what is the last term? a plus n minus 1 into d into r to power n. This is the sum. No, this is not the sum. 1 minus r से डिवाइड कीजिए, you will get the sum. Therefore s is the sum. 1 minus r से डिवाइड कीजिए, you will get the sum. a upon 1 minus r plus dr into 1 minus r to power n minus 1 upon 1 minus r होल स्क्वायर। नाउ यू विल आस्क कि इसको याद कैसे करें? नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस? अप्लाई द कॉन्सेप्ट, और आप कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करेंगे। इफ यू विल यूज द फॉर्मूला
तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की चांस रहेगी, एंड एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इस कंसेप्ट से अप्लाई करें, न कि फार्मूले से। जहां फार्मूला बोला जाएगा वहां फार्मूला अप्लाई करना है, जहां आपसे बोला जाए कंसेप्ट अप्लाई कीजिए वहां कंसेप्ट ही अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालेंगे, वी विल यूज द कंसेप्ट नॉट द फार्मूला। तो नो नीड टू लर्न द फार्मूला, कंसेप्ट समझ में आया। चलिए, अगर कम क्लियरिटी है तो क्वेश्चन लेकर के और ज्यादा हम लोग समझते हैं इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस अप टू n टर्म्स एंड देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो पहले निकालते हैं n टर्म का सम, उसके बाद देखते हैं हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो लेट द सम बी s। तो अगर हमने सम को s कह दिया तो व्हाट विल यू राइट, 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। कैन यू आइडेंटिफाई द जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, क्योंकि हमें पहले फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। सी इन डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है 5 टू पावर 0, सेकेंड टर्म में 5 टू पावर 1, थर्ड में स्क्वायर, फोर्थ में क्यूब। तो nth टर्म में 5 टू पावर n-1 होगा। But what is the numerator of nth term? See the sequence of numerator 1, 4, 7, 10. This is AP. Difference is 3. 1 और 4 का difference 3, फिर 7 और 4 का difference 3, 10 और 7 का difference 3. तो find the nth term of the AP. तो first find the nth term of which sequence? 1, 4, 7, 10. तो nth term के लिए क्या फॉर्मूला है? This is AP. फॉर्मूला इज a प्लस n-1 इंटू डी। एपी का ये था फॉर्मूला। a इज फर्स्ट टर्म, nth टर्म हमें चाहिए, एंड d इज 3। व्हाट इज nth टर्म? 3n-3 प्लस 1, 3n-2। तो nth टर्म इज 3n-2। और gp का हमें nth टर्म पता लग गया, वो तो देखते ही पता लग गया। नाउ gp भी एसोसिएटेड है। व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ gp? 1/5। तो मल्टीप्लाई होल सीरीज बाई 1/5, 1/5s। जब आप 1 में 1/5 इंटू करेंगे तो दिस गिव्स 1/5, तो इसके नीचे लिखेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल राइट 4/5 स्क्वायर बिलो द टर्म दिस टर्म, क्योंकि इसमें 5 स्क्वायर आ रहा है। जब आप इसमें 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे 7/5 क्यूब। सिमिलरली इसका प्रीवियस टर्म क्या रहा होगा? अगर सीक्वेंस एपी में 3 इंक्रीज हो रहा है तो पीछे जाएंगे तो 3 डिक्रीज होगा। तो प्रीवियस टर्म रहा होगा 3n-5 और 5 की पावर n-2, और आप 1/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 टू पावर n-1 हो जाएगा। अब इसमें आप 1/5 इंटू करेंगे, यू विल गेट 3n-2 अपॉन 5 टू पावर n। अब इनका सम डिफरेंस निकालिए। टेक डिफरेंस। कॉन्सेप्ट में यही बताया गया था, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस s माइनस 1/5s। दिस इज 1 और यहां कुछ नहीं है, 0 मान सकते हैं। 1 माइनस 0 इट्स अ 1। 4/5 माइनस 1/5 इट्स अ 3/5। 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर 3/5 स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज 3/5 क्यूब। नेक्स्ट क्या होगा? 3/5 टू पावर 4। जहां डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर इज 5 टू पावर n-1। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3n से 3n कटेगा, -2 माइनस ऑफ -5 दिस इज +5। तो -2 + 5 इट्स अगेन 3, और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा 3n-2 अपॉन 5 टू पावर n। क्लियर? तो जहां से जीपी क्रिएट हो रही है उसमें कितने टर्म्स है? जहां से डिफरेंस मिल रहा है वहां पे जीपी क्रिएट हो रही है। नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर n-1। तो निकालिए जीपी का सम। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n-1। 1 प्लस फर्स्ट टर्म इज 3/5, 1 माइनस r इज 1/5 टू पावर n-1 अपॉन 1 माइनस r इज 1/5 इक्वल टू और नॉट माइनस 3n-2 अपॉन 5 टू पावर n। s माइनस 1/5s इट्स अ 4/5s। Therefore 4/5s equal to, simplify this, 1 minus 1/5 it's a 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, you will get 1 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, you will get 3/4 and 1 minus 1 upon 5 to power n-1 minus
3n minus 2 upon 5 to power n. This is the, not this is the sum, actually this is the value of 4 by 5s. तो आपको फाइंड करना है s, तो 4 by 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो we will multiply by 5 by 4. तो 5 by 4 into the same whole sequence, right in the bracket, 1 plus 3 by 4, 1 minus 1 upon 5 to power n minus 1 minus 3n minus 2 upon 5 to power n. This is the sum of n terms of the given sequence. अब second part है, we have to find the sum of infinite terms. Sum of infinite terms निकालने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताया गया था कि 1 upon infinity it's a 0. 1 upon infinity क्या होता है? 0. It is not necessary कि numerator is 1. Numerator is any constant. A upon infinity is again 0 where A is constant. तो कोई भी constant upon infinity क्या होता है? 0. तो जब आप निकालेंगे sum of infinite term, this is the sum of n terms. Sum of infinite terms में आप क्या लेंगे? n की वैल्यू infinity लेंगे. तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू infinity means n is approaching towards infinity. तो जब n अप्रोच करेगा टूवर्ड्स इंफिनिटी तो सिंप्लीफाई करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा? फर्स्ट यू राइट द सम ऑफ n टर्म्स. क्या लिखा है? 5 by 4, 1 plus 3 by 4, 1 minus 1 upon 5 to power n minus 1 minus 3n minus 2 upon 5 to power n. Now हमें क्या अप्रोच कर रहा है? n क्या अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी. तो n इज इंफिनिटी तो 5 टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0. बट प्रॉब्लम यहां पे है, जब n इंफिनिटी है तो डिनोमिनेटर तो इंफिनिटी है, न्यूमरेटर इज आल्सो इंफिनिटी. बट आप एक कॉन्सेप्ट लिमिट में पढ़ेंगे, अभी आप याद कीजिए, अगर देयर आर टू टर्म्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ अप्रोचेस टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो रिजल्ट जो होगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा. रीजन क्या है? एक्सपोनेंशियल का रेट जो बढ़ने का होता है वो फास्टर होता है किससे? पॉलिनोमियल फंक्शन से. दिस इज द पॉलिनोमियल. ये तो पॉलिनोमियल लीनियर है, इवन क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तब भी एक्सपोनेंशियल बाद में जाकर के फास्ट रेट से बढ़ता है. तो दिस इज लीनियर, तो उसके कंपैरेटिवली तो एक्सपोनेंशियल तो बहुत फास्ट रेट से बढ़ेगा. तो दिस विल अप्रोच वेरी वेरी फास्ट टू इंफिनिटी विद कंपैरिजन टू 3n minus 2. तो ये अल्टीमेटली ये भी 0 पे अप्रोच पर करेगा जब n इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा. तो दिस कॉन्सेप्ट यू विल लर्न इन द लिमिट्स. फिलहाल आपको याद रखना है, अगर पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल है, बोथ आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो रिजल्ट जो होगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा. तो ये पूरा रिजल्ट 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये 0 पे अप्रोच कर रहा है. तो क्या आ गया? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. अब लिमिट नहीं लिखेंगे, जब आपने रिजल्ट लगा दिया कि ये 0 बन रहा है, ये 0, तो यू विल नॉट राइट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो आपको सिर्फ रिजल्ट लिखना है 5 by 4, 1 plus 3 by 4, 1 minus 0 minus 0. तो दिस इज 3 by 4 into 1, 3 by 4, 1 plus 3 by 4, it's a 7 by 4. तो 5 7 या 35 by 16. This is the sum of infinite term of the given sequence. तो आपको कंसेप्ट बेस हो सकता है कि इनफाइनाइट टर्म्स वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए. There is one more method to find the sum of infinite terms. अगर exactly infinite term का, if it is asked infinite term, n term का सम नहीं पूछा है, there is one more method जिससे आप directly easily आप सम निकाल लेंगे. ये सब concept जो आपको confuse कर रहा है, जो अभी बाद में आप सीखेंगे, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी. But this concept we will discuss in the next class. चलिए फिर मिलते हैं in next class. Till then, bye bye, take care.